students, we are going to start this question. Uh, just we take the question. This one. Okay. Here, from the following information, prepare the statement of cost of the year ending 31st 3 2007. Percentage of the overhead to direct wages. देखो cost sheet तो बनानी है. Statement of cost. That means first question is cost sheet. Okay. With this, we have to find some formulas. These three formulas. Number one, percentage of work overhead to direct wages. Okay, so formula for this is work overhead divided by direct wages into 100. Very simple. Okay, number two. Number three. Third question is the percentage of office overhead to work cost. It is also very easy, like this: office overhead divided by work cost into 100. Fourth question is percentage of profit on sale. Profit on sale, that means what? Profit divided by sales into finished. Okay. So these formulas we have to use to find these three questions, and cost sheet you already know. I have already learned to you. Okay. फिर भी हम लोग इस बार बना लेंगे एक बार और इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल है क्या? रॉ मटेरियल का स्टॉक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. वर्क इन प्रोग्रेस एट फैक्ट्री कॉस्ट. देखो गिवन है क्वेश्चन में. It's given that the work in progress is lies between factory. Okay, lies in factory, because here it is written clearly at factory cost. So we have to put it before calculating factory cost or before finding factory cost. बताऊंगा आप लोगों को जब कॉस्ट शीट करेंगे तब कि जब कहाँ पर ये वर्क इन प्रोग्रेस को हमें फिट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, फैक्ट्री कॉस्ट दिया है. फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक दे दिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ओके. देन अदर इन्फॉर्मेशन में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एंड लास्ट फाइनली सेल्स, एंड वी विल गेट प्रॉफिट और लॉस. So here it is very easy question, but we can capture 14 mark from this question in the exam. Okay, students. So let's have a start with the. So we are going to start the answer, uh, which is cost sheet. Okay. कॉस्ट शीट में आप लोग को सबसे पहले हेडिंग्स लिख लेने हैं. पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट. ओके. देन सबसे पहला काम आपका रॉ मटेरियल consumed. Check it is given in the question or not. Raw material consumed is not given, but the things are connected with the raw material are given. The raw material stock, purchase of raw material. So we have to use it and find raw material consumed. Formula क्या है? Opening stock of raw material, that is 90,000, sorry 80,000, plus purchase of raw material amount 14 lakh. Here it is 14 lakh, 80,000 plus purchase of raw material amount 14 lakh, 80,000 plus purchase of raw material amount 14 lakh, 80,000 plus purchase of raw material amount 14 lakh, 80,000 plus purchase of raw material amount 14 lakh, 80,000 plus purchase of raw material amount 14 lakh, 80,000 plus purchase of raw material amount 14 lakh, 80,000 plus purchase of raw material amount 14 lakh, 80,000 plus purchase of raw material amount 14 lakh, 80,000 plus purchase of raw material amount 14 lakh, 80,000 plus purchase of raw material amount 14 lakh, 80,000 plus purchase of raw material amount 14 lakh, 80,000 plus purchase of raw material amount 14 lakh, 80,000 plus purchase of raw material amount 14 lakh, 80,000 plus purchase of raw material amount 14 lakh, 80,000 plus purchase of raw material amount
20,000 minus closing stock of raw material, that is 90,000. इसको आप लोग को ब्रैकेट में रखना है ताकि क्लियर हो सके कि ये अमाउंट क्या है, सब्ट्रैक्ट होने वाली है। ओके, बहुत इजी है। इसी तरह से आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको और इजी लगेगा। 80,000 प्लस 14 लाख 20,000, अमाउंट कम्स टू 15 लाख। 15 लाख माइनस 90,000, टोटल 14 लाख 10,000। ओके, प्लस नेक्स्ट अमाउंट आएगी यहाँ पे। स्ट्रक्चर अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्ट वेजेस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन डायरेक्टली 6,90,000। ओके फ्रेंड्स, टोटल करोगे तो 14 लाख प्लस 6 लाख आपको पता चलेगा 20 लाख है, प्लस 10 1 लाख, दैट इज 21 लाख। कैलकुलेटर यूज करो, जितना कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस होगा उतना आपका टाइम कम जाएगा। ओके, इट इज प्राइम कॉस्ट, वी कैन से प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड आप लोग देख लो, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमाउंट 6,90,000 ये रहा। ओके, ओ सॉरी 2,30,000। टोटल, हाँ टोटल करने से पहले जब मैंने एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन तो आपको बताया था कि भाई स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज गिवन एट फैक्ट्री कॉस्ट। तो जैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड हो गया और अब मैं टोटल करके क्या फाइंड करने वाला हूँ, वर्क कॉस्ट फाइंड करने वाला हूँ ना। तो वर्क कॉस्ट फाइंड करने से पहले हमें ये काम करना है। कौन सा काम, तो देख लो फटाफट, राइट डाउन। प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, हियर इट इज 30,000 minus closing stock of work in progress which is 40,000। okay, so 30 minus 40, आंसर minus 10,000। अब आप लोग कर सकते हो, तो 21 लाख माइनस 21 लाख प्लस 2,30,000, आंसर 23,30,000 प्लस माइनस 10,000, तो 23,20,000। कैलकुलेटर यूज करो, क्लियर हो जाएगा। इट इज योर वर्क कॉस्ट, और यू कैन से फैक्ट्री कॉस्ट ऑल्सो। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस अब आप लोग आगे बढ़ो। क्लियर हुआ वर्क इन प्रोग्रेस का मैटर। वर्क इन प्रोग्रेस के लिए मैंने दो बातें कही थी। अगर वर्क इन प्रोग्रेस के लिए क्वेश्चन में गिवन है कि ये फैक्ट्री कॉस्ट का है या प्राइम कॉस्ट का है, तो उसके अकॉर्डिंग करना है। जैसे फैक्ट्री कॉस्ट का कहा तो हमने क्या किया, फैक्ट्री कॉस्ट लाने से पहले इसका एडजस्टमेंट कर लिया। अगर ये प्राइम कॉस्ट का होता तो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेशन करने से पहले इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ओके, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो क्या करेंगे हम लोग, प्राइम कॉस्ट से पहले इसे एडजस्ट कर लेंगे। ओके, प्राइम कॉस्ट का टोटल करने से पहले ही हमें इसे एडजस्ट कर लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑफिस ओवरहेड which is given in the question directly 2,32,000। टोटल कर लेंगे, $25,52,000। ओके, नेक्स्ट इट इज प्रोडक्शन कॉस्ट। इसे क्या नाम दोगे, प्रोडक्शन कॉस्ट, और यू कैन से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बोथ आर सेम। ओके, नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आंसर आ गया हमारा 25,25,52,000। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखते हैं क्वेश्चन में और क्या डिटेल्स है। देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद एक चीज सोच लो कि यहाँ पर क्या यहाँ पे दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, अगर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है तो आपका काम वही है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद उसे एडजस्ट कर लेना। ओके, अदरवाइज अगर ये मिस हो गया तो क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तीन स्टॉक है आपके पास, वर्क इन प्रोग्रेस को कहाँ फिक्स करना है,
फैक्ट्री कॉस्ट दिया है तो फैक्ट्री कॉस्ट के टाइम पे फैक्ट्री कॉस्ट काउंट करने से पहले, ओके। अगर यहाँ पे कुछ नहीं बोला होता तो प्राइम कॉस्ट काउंट करने से पहले, ओके। ये वाली प्लेस पे करना था अपने को, यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस के नीचे प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग, रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। बट यहाँ पे दिया हुआ है क्या, फैक्ट्री कॉस्ट, तो हम लोगों ने फैक्ट्री कॉस्ट यानी वर्क कॉस्ट काउंट करने से पहले हमने इसे एडजस्ट कर लिया, ओके। सेम एज इसको भी हमें एडजस्ट करना है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को, राइट डाउन ओपनिंग स्टॉक ऑफ finished goods, that is 1,60,000 minus closing stock of finished goods 1,12,000, okay। 1,60,000 minus 1,20,000 48,000, okay, clear। Then add it into 25,58,000, total comes to 26 lakh। अब इसको क्या नाम दोगे आप लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, ओके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया आपको, कितना आपने जो गुड्स सोल्ड किया है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 26 लाख। अब आप लोग आगे बढ़ो, प्लस सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड क्या है, सेलिंग ओवरहेड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, तो वही लिख लेते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। in that selling overhead is 1,60,000 and distribution overhead that is 40,000, total comes to 2 lakh, amount comes to 28 lakh, it's your total cost, okay। सो यहाँ तक अपना काम खत्म। अब अपने को क्या करना है, प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कॉस्ट में से। सेल्स कितनी है देख लो, सेल्स है अपने पास 35 लाख, 35 लाख सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। कैसे पता चला प्रॉफिट है, आपकी कॉस्ट प्राइस 28 लाख है और सेलिंग प्राइस 35 लाख है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 लाख का प्रॉफिट हुआ, ओके। ये बन गई हमारी कॉस्ट शीट। किसी को प्रॉब्लम हो तो एक बार फिर से इसको देखेंगे, पूरे वीडियो को समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करो, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है ही, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग इसमें फॉर्मूलेज लिख लिए थे स्टार्टिंग में, उन्हीं फॉर्मूलेज को सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 1, फर्स्ट फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड टू डायरेक्ट वेजेस। वर्क ओवरहेड टू डायरेक्ट वेजेस का फॉर्मूला आपको पता ही है, वर्क ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट वेजेस इनटू 100, मैंने लिखवा दिया था। तो वर्क ओवरहेड कितना है, वर्क ओवरहेड इज 2,30,000 and direct wages is 6,90,000। 2,30,000 divided by 6,90,000 into 100, कर लेंगे सॉल्व इसे। 2,30,000 divided by 6,90,000 into 100, answer comes to 33.33%, okay। Number 2, percentage of office overhead to work cost।
ऑफिस ओवरहेड टू वर्क कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कि ऑफिस ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट इनटू 100, तो उसी को अप्लाई करेंगे। ऑफिस ओवरहेड इज 2,32,000 divided by work cost is 23,20,000 into 100. Answer comes to 10%. Third formula is percentage of profit on sell. Profit divided by sales into 100. Profit is 7 lakh. Sales is 35 lakh into 100. Answer comes to 20%. आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कैसे फॉर्मूले बनते हैं, कैसे उसको अपने को क्लियरली सॉल्व करना है, कब फॉर्मूले सॉल्व करने हैं, कब कॉस्ट शीट बनानी है। एवरीथिंग इज वेरी इजी। ओके, कॉस्ट शीट भी इजी है। स्ट्रक्चर को एक बार आप लोग को मैं एक वीडियो और डालने वाला हूँ, इसके बाद स्ट्रक्चर को फिर से एक बार और एक्सप्लेन करूँगा मैं, जिसमें मैंने सारी चीज़ें डाल डाल दी है कि जितनी भी पॉसिबल है कि भाई इतने इतने पॉसिबिलिटीज़ है, ये स्ट्रक्चर में वैल्यूज़ आती है, उन सारी वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया है और वो वीडियो बन रहा है, उसको भी मैं अपलोड कर दूँगा। ओके, तो इससे थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉस्ट शीट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें फाइनली आती है। ओके, थैंक्स टू ऑल। और लाइक ज़रूर करना है, अच्छा लगे तो भी लाइक करो, ख़राब लगे तो भी लाइक करो। ओके, डिसलाइक नहीं करना है। और शेयर ज़रूर करना, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को शेयर करो जो नहीं नहीं है, जिसके पास सोर्सेज के भाई मैं क्लास नहीं जा पा रहे हैं, वो जो पढ़ना चाहते हैं उनको ये सब शेयर करो। ठीक है, सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, ताकि और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो आपको पता चले। ओके, थैंक्स।